السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میرا نام ہے عامر نہال اور آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی سیزن 3 ایپیسوڈ 7 کی ہائی لائٹس۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ٹریننگ ایریا میں ایک پریکٹس کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں اس کے پاس ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی عبدالرحمن بھی سیمن کے ایک ساتھی فلپ کے ساتھ وہاں پر حاضر ہو جاتا ہے۔ عبدالرحمن وہاں پر پہنچ کر کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی ان کا نام فلپ ہے اور یہ سیمن صاحب کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس پر ارطغرل اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کو سیمن صاحب نے سلام بھیجا ہے اور آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے کچھ سپاہی جو کہ قسطنطنیہ قالین لے کر جا رہے تھے ان پر حملہ ہو چکا تھا۔ یہ سنتے ہی ٹریننگ ایریا میں موجود تمام کے تمام سپاہی حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فلپ کہتا ہے کہ آپ کا ایک سپاہی ترگت، اس کے علاوہ تمام کے تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اس پر ارطغرل جذباتی ہو کر پوچھتا ہے کہ کہاں ہے وہ ترگت؟ فلپ کہتا ہے کہ وہ ہمارے مہمان خانے میں ہے اور اس کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، وہ بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن میں ہے اور صرف آپ کا سپاہی ترگت ہی جانتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ کس نے کروایا۔ یہ کہنے کے بعد فلپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل عبدالرحمن سے کہتا ہے کہ ترگت صاحب کو خبر دو کیونکہ میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد ارطغرل حائمہ خاتون سے کہتا ہے والدہ میں جا رہا ہوں ترگت کو دیکھنے کے لیے، آپ پیچھے شہیدوں کے گھر والوں کو دیکھیں اور ان لوگوں کو حوصلہ دیجیے اور ان کو یہ ضرور بتائیں کہ ہمارے شہیدوں کا خون رہے گا نہیں جائے گا، ان کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ساتھ ہی ارطغرل بامسی اور کچھ دوسرے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں جاندار اپنے بیٹے الیار سے کہتا ہے کہ تم خود جانا ارطغرل کو دعوت دینے کے لیے۔ اس پر الیار کہتا ہے کہ والد صاحب کیا ارطغرل کو دعوت دینا کیا شعلوں کے اوپر ہوا دینے کے مترادف نہیں ہے؟ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ عقل مند آدمی ہے اور اگر ارطغرل کو غلطی سے بھی پتہ چل گیا کہ اس کے قافلے کے اوپر حملہ میرے بھائی نے کروایا تھا پھر تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اس پر جاندار کہتا ہے کہ بیٹا میں اس کو اسی لیے دعوت دے رہا ہوں تاکہ وہ میرے بیٹے اورال کے اوپر شک نہ کرے اور جب وہ آئے گا تو ہم دعوت پر اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں گے اور اس کے ساتھ تعزیت کریں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے کہ آپ لوگوں کے قافلے پر جو حملہ ہوا ہے ہمیں اس کا بہت زیادہ دکھ ہے اور قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ہر طرح کی مدد ہماری آپ کے ساتھ ہوگی۔ نہیں تو ارطغرل کو اگر غصہ آ گیا تو پھر یا تو ارطغرل مر جائے گا یا پھر اورال مر جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا مر جائے۔ اس کے بعد الیار کہتا ہے کہ اگر ارطغرل صاحب کو پتہ چل گیا کہ اس سازش کے پیچھے میرا بھائی ملوث ہے پھر تو وہ لازمی ہم سے انتقام لے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس پر جاندار کہتا ہے کہ ہمیں پھر مجبوراً ارطغرل کو مارنا پڑے گا۔ اس پر الیار کہتا ہے کہ بابا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ارطغرل کے اوپر ہاتھ ڈالیں، دونوں طرف سے سپاہیوں کو مرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جاندار کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا تم بس میرا یہ کام کرو کہ تم ارطغرل کے پاس جاؤ اور ہر حال میں اس کو یہاں پر آنے کی دعوت دو۔ دوسری طرف ترگت ہانلی بازار میں سیمن کے مہمان خانے میں تھا اور اس کی بہن ماریا اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ماریا اپنے بھائی سیمن سے کہتی ہے کہ میں جو کچھ بھی کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا، اب مزید کوشش کے لیے ہمیں ڈاکٹر چاہیے ہوگا۔ اس پر سیمن اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ بچ جائے گا؟ ماریا کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ، البتہ ہمیں طبیب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد سیمن کہتا ہے کہ اگر ترگت بچ جائے اور وہ ارطغرل کو یہ بتا دے کہ یہ سب کچھ باتوہان نے کیا ہے جو کہ اورال کا آدمی ہے تو اس طرح وہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں گے، ارطغرل کے اور جاندار کے، اور یہی چیز میں چاہتا ہوں۔ اس پر ماریا کہتی ہے کہ اور اگر ترگت مر گیا تو؟ اس پر سیمن کہتا ہے کہ تو پھر یہ خنجر کام آئے گا جو کہ ہمیں اس جگہ پر ملا تھا جہاں پر حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سیمن اپنے ایک سپاہی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ خنجر اپنے پاس رکھو اور اپنے بہت زیادہ قابل اعتماد آدمی کو یہ دے دو کیونکہ ہر حال میں یہ خنجر آج ارطغرل کو ملنا چاہیے اور کسی طرح ارطغرل تک یہ خبر پہنچاؤ کہ وہ اندھی بہار والی جگہ پر جائے اور جب ارطغرل وہاں پر جائے گا تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ خنجر باتو خان کا ہے جو کہ اورال کا آدمی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ مہمان خانے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ مہمان خانے میں وہ تاجر بھی موجود ہوتا ہے جو کہ اورال اور سیمن کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا ہوتا ہے اور غصے میں کہتا ہے کہ میں نے اس ترک کے اوپر بھروسہ کر کے نہ صرف اپنے سکوں کو کھو دیا اور اپنے 2 قابل سپاہیوں کو بھی کھو دیا۔ اس پر اورال کہتا ہے کہ ریکارڈو صاحب آپ نے ارطغرل صاحب کے اوپر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے
और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। इतनी देर में अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और उनको देखते ही वो ताजिर भी खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो ताजिर अर्तुगरुल से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि वो कालीनें बाहिफाजत कुस्तुनतुनिया पहुँचाओगे, तो अब मुझे जवाब दो। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि मेरा एक आदमी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, पहले मुझे उसको देखना होगा। ये कहकर अर्तुगरुल आगे बढ़ने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो ताजिर कहता है कि तुम मेरे 300 सिक्कों के मकरूज़ हो। अर्तुगरुल कुछ भी नहीं कहता और आगे बढ़ने लगता है। ये देखते ही वो ताजिर अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। अर्तुगरुल फ़ौरन उसका हथियार रोक लेता है और उसको नीचे गिरा देता है और उसी की तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। इसके बाद वो ऊंची आवाज़ में शेर की तरह कहता है कि मैं अर्तुगरुल हूँ, सुलेमान शाह का बेटा, मैं अपने वादों पर कायम रहता हूँ, तुम्हें तुम्हारा सोना मिल जाएगा। और साथ ही वो खड़ा हो जाता है और उस ताजिर की तलवार को नीचे फेंक देता है। इसके बाद उराल उसकी तरफ खड़ा होता है और कहता है कि अर्तुगरुल साहब, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। इसके बाद सिमन भी आगे आता है और कहता है कि अर्तुगरुल साहब, आप यकीन रखें कि मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं हर तरह से आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस पर अर्तुगरुल उसको कहता है कि सिमन साहब, मैं आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा, मुझे ये बताएं कि मेरा सिपाही कहाँ है। इस पर सिमन कहता है कि आप बिल्कुल परेशान ना हों, हौसला रखें, मेरी बहन मारिया उसका ख्याल रख रही है। इसके बाद वो अपने आदमी फ़िलिप से कहता है कि तुम अर्तुगरुल साहब को तुर्गुत साहब के कमरे में ले जाओ, मैं अभी थोड़ी देर तक आता हूँ। उनके जाने के बाद उराल उस ताजिर की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ आगे करता है और उसको उठाता है और कहता है कि ये थी कीमत तुम्हारी चालाकी की। इसके बाद वो तीनों मेज़ पर दोबारा बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल उस कमरे में जाता है जहाँ पर तुर्गुत होता है और उसके ज़ख्मों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हकीम अरकुत साहब आगे आते हैं और उसको देखते हैं। इसके बाद मारिया कहती है कि तलवार इनके बाजू और जिस्म पर लगी है, लेकिन तलवार इनके पेट में लगी है। किसी ख़ास उज़्व को तो नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी है और खून इनका बहुत ज़्यादा बह चुका है। मैं एक ज़माने में नर्स भी रह चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो मैं इसकी और मदद कर सकती हूँ। आप मुझे सफाई के लिए गर्म पानी और कपड़ा ला दें। इसके बाद अर्तुगरुल मारिया से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और आपको तुर्गुत कैसे मिला। इस पर मारिया कहती है कि ये मुझे कारा जैसर के मकाम पर मिला था। इसके बाद अर्तुगरुल पूछता है कि तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे। मारिया कहती है कि हम कुछ रकम वसूल करने जा रहे थे कि रास्ते में हमें धुआं नज़र आया और हम उस जगह पर चले गए जहाँ पर ये लोग पड़े थे। इसके बाद अर्तुगरुल पूछता है कि मेरे बाकी सिपाहियों की लाशें कहाँ हैं। मारिया कहती है कि उनकी लाशें बाहर हैं, क्योंकि मेरे भाई ने उनकी लाशें मंगवा ली थीं बाहिफाजत। हम बहन भाइयों को आपके नुकसान का बहुत ज़्यादा अफसोस है। दूसरी तरफ सिमन उस ताजिर को कहता है कि आपकी तमाम के तमाम कालीनें जल चुकी हैं, अभी भी आपके सामने उराल साहब की पेशकश मौजूद है, एक कालीन के बदले 3 सिक्के। इसके अलावा आपके माल को वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी हम दोनों उठाएंगे। इस पर ताजिर कहता है कि उन सिक्कों का क्या होगा जो कि मैंने अर्तुगरुल को दिए थे। सिमन कहता है कि वो सिक्के मैं देख लूँगा, अगर आप कहें और मुझे इजाज़त दें तो मैं अर्तुगरुल से वो सिक्के वसूल करके आपको दे दूँगा। ताजिर कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे 3 दिन में वापस जाना होगा, इसलिए अब मैं उराल साहब से कालीनें ले लूँगा। इसके बाद सिमन उराल से कहता है कि रिकार्डो साहब को बाहर तक 1500 कालीनें चाहिए, क्या तुम तैयार कर सकते हो। इस पर उराल कहता है जी बिल्कुल, मैं बड़े आराम से कर लूँगा। इसके बाद उराल और ताजिर खड़े हो जाते हैं और हाथ मिलाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और बामसी बाहर आते हैं और अपने शहीद सिपाहियों की लाशें देखते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। इसके बाद सिमन भी वहाँ पर आ जाता है। अर्तुगरुल कहता है कि ये काम जिसने भी किया है हम उनको इबरतनाक सज़ा देंगे। इसके बाद सिमन कहता है कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो बहुत ज़्यादा घटिया हैं, उन लोगों ने कालीनों को भी आग लगा दी और आदमियों को भी मार दिया, और अब ये हम दोनों की ज़िम्मेदारी है कि हम उनसे बदला लें। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि सिमन साहब, आप इस मामले के बारे में और क्या जानते हैं। सिमन कहता है कि मेरी बहन मारिया ने बताया है कि वो लोग तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे और उनके भी काफ़ी ज़्यादा आदमी मारे गए हैं, लेकिन वो लोग अपने मरे हुए साथियों की लाशों को उठाकर ले जा चुके हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो चोर नहीं थे। इस पर सिमन कहता है कि नहीं, वाकई वो कोई चोर नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो आपके दुश्मन थे। इसके बाद सिमन कहता है कि अर्तुगरुल साहब, उराल के ऊपर शक ना कीजिएगा, क्योंकि वो अपने कबीले में मौजूद था, और दूसरी बात यह कि वो इतनी घटिया हरकत कर भी नहीं सकता। साथ ही अलियार भी बाज़ार में पहुंच जाता है। अलियार के साथ वाला सिपाही बताता है कि भाई ये अर्तुगरुल साहब हैं और इसके साथ जो सिपाही है उसका नाम बामसी है, और तीसरा शख्स जो उनके साथ खड़ा है उसका नाम सिमन है, जो कि इस बाज़ार का मालिक है।
दूसरी तरफ हकीम अरकुत साहब तुर्गुत के पास होते हैं और उनके ज़ख़म को टांके लगा रहे होते हैं। अर्तुगरुल भी वहाँ पर आ जाता है। अर्तुगरुल हकीम अरकुत साहब से पूछता है कि क्या हाल है। इस पर हकीम अरकुत साहब कहते हैं कि मारिया ने बहुत अच्छा ख्याल रखा है, अगर वो ऐसा ना करती तो तुर्गुत की जान भी जा सकती थी। अभी तुर्गुत साहब की जैसी हालत है, हम इनको कबीले में नहीं लेकर जा सकते। इसके बाद मारिया भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि अर्तुगरुल साहब आप परेशान ना हो, मैं आपके सिपाही तुर्गुत का पूरा ख्याल रखूँगी। इसके बाद अर्तुगरुल हाँ में सर हिलाकर बाहर चला जाता है। बाहर आने के बाद अर्तुगरुल बामसी से कहता है कि बामसी भाई आप यहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि हम किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। हकीम अरकुत साहब कहते हैं कि अर्तुगरुल भाई अगर बाप्तिस जी याहिया भी यहाँ पर हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अगर बाप्तिस याहिया खुद सिमन है तो फिर हम इस सूरत हाल को आगे जाकर देखेंगे और वो यकीनन मेरा एतमाद जीतने की पूरी कोशिश करेगा। इतनी देर में सिमन भी वहाँ पर आ जाता है। अर्तुगरुल उसको देखने के बाद कहता है कि बामसी साहब यहाँ पर ही रहेंगे और मैं यकीनन आपके इस एहसान का बदला चुकाऊँगा। इस पर सिमन कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो अर्तुगरुल साहब, ये तीनों मेरे मेहमान हैं। इस पर अर्तुगरुल उसको शुक्रिया कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद अर्तुगरुल बामसी से कहता है कि अब तुर्गुत तुम्हारे हवाले है। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। करीब ही सिमन का एक आदमी भिखारी के कान में कुछ कहता है और वो भिखारी उनके पीछे चलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मारिया तुर्गुत के पास होती है और वो रुमाल से कुछ पानी के कतरे तुर्गुत के मुंह पर डालती है, जिस पर वो थोड़ा सा होश में आने के बाद आइकिस का नाम लेता है। इतनी देर में सिमन भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मेरी बहन क्या ये बच जाएगा। मारिया कहती है हाँ जी ये बच जाएगा। इस पर सिमन कहता है कि ठीक है, मैं भी इसको ज़िंदा ही चाहता हूँ, क्योंकि इसी की वजह से मैं अर्तुगरुल की असलियत जानूंगा, इसी वजह से मैं इसको ज़िंदा रखना चाहता हूँ। और तुम कोशिश करो कि ये तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाओ और फिर मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहता हूँ। इसके बाद मारिया कहती है कि भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं इसको बेवकूफ़ बनाऊंगी। इसके बाद वो दोनों हंसते हैं और सिमन अपने साथी के साथ बाहर चला जाता है। उनके जाने के बाद मारिया तुर्गुत के पास आती है और अपना हाथ उसके सर पर रख देती है और सोचती है कि यह आइकिस कौन है। इतनी देर में बामसी वहाँ पर आता है तो वो पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ हकीम अरकुत साहब और अर्तुगरुल जा रहे होते हैं कि वो भिखारी भी उनका पीछा कर रहा होता है और साथ ही अलियार भी उनका पीछा कर रहा होता है। अर्तुगरुल को उस भिखारी के ऊपर शक हो जाता है और वो अचानक एक ट्रिक के ज़रिए उसको पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो हमसे। वो भिखारी कहता है कि भाई मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे किसी ने सिक्के दिए हैं और कहा है कि अर्तुगरुल साहब तक ये पैगाम पहुँचाऊँ कि अगर वो सच जानना चाहते हैं तो वह अंधी बहार वाली जगह पर जाएं। ये सुनते ही अर्तुगरुल उसको छोड़ देता है और ये सब कुछ अलियार भी छुप कर सुन रहा होता है। अर्तुग साहब अर्तुगरुल से कहते हैं कि अर्तुगरुल भाई आपको किसी जाल में फंसाया जा रहा है। अर्तुगरुल कहता है कि वो लोग मुझे मारना नहीं चाहते जो मेरी जासूसी कर रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि मैं उस जगह का सामना करूं और उन लोगों को तलाश करूं जो कि इस कार्रवाई में मुलव्विस हैं। दूसरी तरफ अलियार अपने घोड़े के पास जाता है और अपने साथी से कहता है कि हम अर्तुगरुल को हकीकत का पता नहीं चलने देंगे, हम नहीं चाहते कि दोनों कबीलों की आपस में लड़ाई हो। दूसरी तरफ ओराल बातू खान के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें अर्तुगरुल ने नहीं देखा। इस पर वो कहता है कि नहीं जी, किसी ने भी नहीं देखा। इसके बाद ओराल कहता है कि हम किसी किस्म का मौका नहीं देना चाहते और हम तुर्गुत को ज़िंदा भी नहीं रखना चाहते। इसके बाद वो अपने सिपाही से कहता है कि तुर्गुत किसी भी सूरत में मेहमान खाने से ज़िंदा बाहर नहीं आना चाहिए। इसके बाद बातू खान कहता है कि ओराल साहब एक मसला हो गया है, मेरा खंजर नहीं मिल रहा। ये सुनते ही ओराल साहब गुस्से में आ जाता है और उसको नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि अगर अर्तुगरुल को पता चल गया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद घोड़ों के पास जाकर अर्तुगरुल हकीम अरकुत साहब से कहता है कि आप हमारे शहीदों को कबीले वापस ले जाएं, मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद वापस आ जाऊंगा। अभी मैं कुछ सिपाहियों के साथ अंधी बहार वाली जगह पर जाऊंगा। ये कहने के बाद अर्तुगरुल वहाँ से जाने लगता है कि ओराल वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अर्तुगरुल साहब आपका कमांडर कैसा है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद ओराल कहता है कि ये इलाका इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, यहाँ पर तिजारत करना तलवार चलाने से भी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आपको चाहिए कि आप जंगों तक ही महदूद रहें और इन चीज़ों में मत पड़ें जिनकी आपको समझ ही नहीं। अर्तुगरुल उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और घोड़े पर चढ़ने के बाद कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें सोने के खातिर झुकना नहीं पड़ा।
ہم ان لٹیروں کے سر ضرور اتاریں گے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور یہ بات آپ جان لیں کہ یہ زمینیں ہمارے لیے وطن ہیں اور کوئی ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکتا، اور کوئی سوچے بھی نہ کہ ہم یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اورال کی جو عورت دوست تھی وہ وہاں پر آ جاتی ہے۔ اورال اس کو کہتا ہے کہ کسی وقت ماریا سے ملو اور ترکت کا جائزہ لو۔ اس پر وہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اورال صاحب، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں ایسا ہی کروں گی۔ دوسری طرف حکیم ارکت صاحب شہیدوں کی لاشیں لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور قبیلے میں ہر طرف رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور شہیدوں کے رشتہ داروں کو دلاسا دیتی ہیں۔ ساتھ ہی قبیلے کے لوگ نعرے لگانے لگتے ہیں کہ ہم انتقام لیں گے، انتقام لیں گے۔ حکیم ارکت صاحب ان کو خاموش کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ ارطغرل بھائی ان لوگوں کا جائزہ لینے کے لیے گئے ہیں جو کہ اس کے پیچھے ملوث ہیں، اور آپ سب لوگ یہ جان لیں کہ انشاءاللہ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ اور ساتھ ہی اس قص کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔